Hi everybody, how are you? I'm Mukesh Kumar Dona. Welcome you in my class Vedanta Studies, the world of biology. So let's start to our next topic. 12th class, human reproduction is the third chapter of your syllabus. Today we have to start our new chapter, human reproduction. This is third chapter. ये तीसरा third chapter है आपके syllabus का. Yes. So this is our part first portion of this chapter, in which the topics are mentioned. Use diagrams also. The beautiful diagrams is also mentioned here by drawn by me, right? So before starting our topic, male reproductive system. This is the first topic of this chapter, chapter number 3, right? Before starting this point, before starting the first point of this chapter, I would like to summarize some topics before starting this chapter, right? You have mentioned some topics. Basic steps are, okay, first, gametogenesis, the formation of gametes, means sperm formation and egg formation. So gametogenesis is the process of formation of gametes. Gametes, we know, sperm is a male gamete. So procedure of the formation of sperms called spermatogenesis, and the process of egg, the process of formation of egg, that is called oogenesis, right? So in human being, gametogenesis means the process of formation of gametes. Second point, insemination, the discharging of sperm in a vaginal tract of female body. फीमेल बॉडी में वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म्स का डिस्चार्जिंग होना, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड इंसेमिनेशन. थर्ड नंबर, फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग टू परफॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड फर्दर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, राइट? ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, after the formation of zygote in a fertilization, multicellular structures we can see there, and that is called blastocyst. This is the initial stage or initial form of the embryo, that is called blastocyst. So we have to also go through this developing process, blastocyst development, right? So हम ये कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट एक तरह का एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, एम्ब्रियो के डेवलपिंग एक स्टेजेस हैं. एम्प्लांटेशन, द एम्बेडिंग ऑफ इनिशियल एम्ब्रियो इन ए यूटेरस वॉल के अंदर एम्बेडिंग होना, अटैचमेंट होना. किसका अटैचमेंट होना? एम्ब्रियो का अटैचमेंट, और इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो दैट कॉल ब्लास्टोसिस्ट, राइट? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 16 to 32 सेल्स होती हैं, यानी कि 16 से 32 सेल्स होती हैं. इसी स्टेज में एम्ब्रियो के इसी स्टेज के अंदर यूटेरस से फर्दर न्यूट्रिशन गेन करने के लिए ये एम्ब्रियो अटैचमेंट करता है यूटेरस वॉल से. दैट अटैचमेंट कॉन एम्प्लांटेशन, राइट? एम्प्लांटेशन, यहीं से डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मीन्स प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, राइट? नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एम्ब्रियो डेवलपमेंट मीन्स एम्ब्रियोजेनी, द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट and differentiation of the all organs or all the cells and tissues in an embryo, that division called embryogeny, and this process called embryo development. In a human being it takes 9 months, approx 9 months. तो 9 months का ये प्रोसेस में एक एम्ब्रियो डिफरेंट स्टेजेस क्रॉस करता है, जिसके अंदर वो सिंगुलर जायगोट से मल्टीसेलुलर कन्वर्ट होता है, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से जर्म लेयर्स बनती है, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. और एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के बनने के बाद फर्दर इनके फ्यूचर डिसाइड होता है अकॉर्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर. ईच एंड एवरी लेयर्स ऑफ द सेल्स ऑफ ईच एंड एवरी जर्मिनल लेयर्स मूव्स to the particular their part of the embryo to form the particular organ or system, like nervous system, excretory system, lungs, hearts, etc. etc. And the last topic, basic steps का है वो parturition. This is the natural process of expelling. This is the natural process of expelling of mature
fully developed embryo from the mother's body, from the mother's body through the vaginal पोर. वेजनल पोर को हम बर्थ पोर भी कहते हैं. तो बर्थ पोर और वेजनल पोर के थ्रू एक फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो, फुल्ली डेवलप्ड फीटस का बॉडी से बाहर एक्सपेल होना, दिस इज नेचुरल प्रोसेस. दिस कॉल्ड एक्सप्लानेशन. दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन. दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन. इनकी डिलीवरी होना. yes. अब हम बात करें, इसको हम इरेज कर देते हैं. ये हमें पूरे चैप्टर के अंदर कवर करना होगा. और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. और ये हमारे आज का सबसे फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आई मेंशन हियर 3 टॉपिक्स. वी हैव टू कवर दिस टॉपिक्स अंडर 3 टॉपिक्स. फर्स्ट, टेस्टिस. टेस्टिस को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल पार्ट, मेल बॉडी. ह्यूमन बीइंग में मेल बॉडी के अंदर डेवलपिंग प्रोसेस जो एम्ब्रियो का होता है, उसमें सबसे पहले टेस्टिस बनती है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो सबसे पहले बनता है. दैट्स व्हाई टेस्टिस कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के साथ कुछ एसेसरी ट्यूबुल्स और डक्ट्स ही होती हैं जो उनके प्रोसेस को सपोर्ट करने का काम करेगी. टेस्टिस का मेनली वर्क, एज वी नो, 10th क्लास में भी पढ़ा आपने, एज वी नो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म conducted in a testis. So in a testis, these tubules, these accessory tubules are responsible to carry them through the penis outside of the body, right? तो accessory ducts कौन सी होती है वो हमें पढ़ना है. उसके बाद glands. Some glands, secretory glands, exocrine glands are also responsible for the formation of nourishment of the sperm or for further development or maturation of the sperms. So these glands provide some secretions, or these secretions along with sperms cord commonly उनको कहा जाता है semen साइट. तो glands basically उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी और उस स्पर्म्स को नॉरिशमेंट देने के साथ साथ उसको सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगी, एंजाइम देने का काम करेगी, विटामिन्स देने का काम करती है. तो ये सभी चीजें यहाँ पर कर रही हैं. तो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट टेस्टिस पढ़ना होगा, एसेसरी डक्ट्स पढ़ना होगा, उसके बाद ग्लैंड्स पढ़ना होगा. सबसे पहले हम बात करें टेस्टिस वाले. इस चैप्टर, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए आप. इस डायग्राम का जो अपर स्टेयर है वो है यूरिनरी ब्लैडर. लोअर पार्ट में आप स्क्रोटम देख सकते हैं. हमने सबसे पहले बात की टेस्टिस की. ये हमारे आज का फर्स्ट टॉपिक है, टेस्टिस. टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, इन मेल. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है. ध्यान से देखिए इस डायग्राम को. स्क्रोटम, सैक-लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें एनक्लोज रहते हैं, कौन? टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर से ट्यूबुल्स निकलती है. उस ट्यूबुल्स को क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस आगे चलकर के हाईली कोल्ड होती है, आगे चलकर के स्ट्रेट हो जाती है, उसे वास डेफरेंस कहते हैं. वास डेफरेंस फाइनली किसमें आकर के ओपन होती है? यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाले प्रोसेस यूरिनरी पैसेज से, यूरिनरी पैसेज से आकर के अटैच हो जाती है. यूरिनरी पैसेज और वास डेफरेंस के कंबाइंड फॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है, राइट. बिफोर ओपनिंग इन द यूरेथ्रा, दीज डक्ट्स कंबाइंड विद अ ग्लैंड, एक कंबाइंड होती है ग्लैंड के साथ. आगे देखें अपन. अब ये जो एक सीधा ट्रैक्ट मीडियम आ रहा है जिसको हम यूरेथ्रा पैसेज, यूरेथ्रल पैसेज कहते हैं, वो फाइनली किस पे जाके ओपन होता है? वो फाइनली जाके ओपन होता है पेनिस के अंदर. और पेनिस के ओपनिंग स्टेयर के अंदर सबसे आगे का ये जो स्वलन पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है, जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं. और ये ग्लांस पेनिस एक मेम्ब्रेन से पार्शियली कवर्ड रहता है. दैट्स मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ स्किन, फोर स्किन जो होती है उसे प्रीप्यूज कहा जाता है, राइट. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेनिस क्या है? पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है. तो एक तरह से देखा जाए तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस देखिए आप, ध्यान से देखिए यहाँ पर. टेस्टिस यहां पर ये ओवल शेप है. इस ओवल शेप की जो चौड़ाई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है. इसकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है, राइट. ये किसमें लोकेट रहती है? ये लोकेट रह रही है किसमें? स्क्रोटम में.
किसमें एनक्लोज है? स्क्रोटम में एनक्लोज है स्क्रोटम। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर टेस्टी बंद रहती है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहने का काम क्या है? So testes are primary sex organs of the male which situated in a pelvic region. This is called pelvic region, which is situated in pelvic region outside of the abdominal cavity. Abdominal cavity के just बाहर की तरफ ये लोकेट रहती हैं और within a pouch-like structure that called scrotum. This pouch-like structure is very muscular in nature. That called scrotum. इसे scrotum कहा जाता है। स्क्रोटम के अंदर जो मसल्स होती हैं वो सस्पेंशन देने का काम कर रही है। किसको सस्पेंशन देने का काम कर रही है? टेस्टिस को। टेस्टिस को एक तरह से स्क्रोटम क्या प्रोवाइड कर रही है? स्क्रोटम पहली बात ये प्रोवाइड कर रही है क्या? ये प्रोवाइड कर रही है सस्पेंशन। सेकेंड नंबर ये प्रोवाइड कर रही है प्रोटेक्शन। थर्ड नंबर ये प्रोवाइड कर रही है एक सुटेबल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की बात आई तो टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का डिग्री टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और 37 डिग्री सेल्सियस जो डिग्री का टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली एब्डोमिनल कैविटी का होता है। स्क्रोटम का ये डिग्री टेम्परेचर नहीं होता। स्क्रोटम का ये डिग्री टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 37 से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर होता है। सो दिस इज the main function of scrotum that provide a suspension to the testes, that provide the protection to the testes, because testes are very delicate or very important part of the male reproductive system. Or also scrotum provides a suitable temperature and also able to maintain a suitable temperature which is between the 2 and 2.5 degrees Celsius from our body temperature. So our body temperature is a 37 degrees Celsius. So scrotum is a main devotion to maintain the last 2 to 2.5 degrees Celsius from our body temperature. Right? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को लोअर करके रखता है। अब हम टेस्टिस के कुछ पार्ट्स की बात करें और टेस्टिस के पार्ट्स को यदि पढ़ना है तो ये वाला डायग्राम हमें थोड़ा ब्रॉड करना होगा। लेट्स यस, ड्राइंग में पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस, राइट। इसी पोर्शन को थोड़ा सा हमने ब्रॉड कर लिया है। यहाँ पर अपन आगे बढ़े उससे पहले एक चीज यहां पर क्लियर कर ले कि टेस्टिस लोकेट रहती है स्क्रोटम में और स्क्रोटम में वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सस्पेंशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। इनकी सस्पेंशन सिचुएशन क्लियर रहनी चाहिए। टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम हमेशा एक क्रॉड की वजह से, एक मस्कुलर रॉड की वजह से यहां पर टिका रहता है। इस मस्कुलर कॉर्ड को कहते हैं गुबरेंकुलम। So what is the gubernaculum? Fibrous cord-like structure that is very responsible to connect the testes in scrotum and also make the suitable situation of the testes in scrotum. Scrotum के अंदर ये जो गुबरेंकुलम है वो टेस्टिस की लोकेशन को एग्जैक्ट करके रखता है। कहीं भी प्रेशर की वजह से कहीं ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ना चला जाए, इसलिए गुबरेंकुलम इसको यहाँ पर टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम, टेस्टिस को स्क्रोटम में है वो बिल्कुल लोकेशन फिक्स रखता है, कनेक्ट करके रखता है बॉटम में, स्क्रोटम के बॉटम में इसको बना के रखे। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर ये कि ये नैरो पैसेज है। ये नैरो पैसेज से ठीक ऊपर की तरफ क्या मौजूद है, जैसे मैं यहाँ बात करूं ऊपर की तरफ क्या मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी का ये वाला जो और पार्ट है, इस लोकेट पार्ट है, इसको इस तरह से बात करें यहाँ पर, ये जो लोकेटेड पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का रिंग बना दी है यहाँ, ठीक है, ऐसे रिंग बना दी। तो ये जो पार्ट है वो एक नैरो ल्यूमन बना रहा है, ऐसी ल्यूमन, ऐसी एक कैविटी
जो एक तरफ तो एब्डोमिनल कैविटी से लिंक कर रही है, दूसरी तरफ ये टेस्टिकुलर स्क्रोटम सैक से, स्क्रोटम जो कैविटी है ये उससे कनेक्ट करने का काम कर रही है। इस बीच की कैविटी को, नैरो कैविटी को इंग्विनल कैनाल कहते हैं, इंग्विनल कैनाल। अभी ये डाल, so by inguinal canal the cavity of scrotum connect with abdominal cavity, right? इस जगह पर एक आप जॉइंट देखें, आप बहुत से इससे पास होके जा रहे हैं। देखिए टेस्टिस से निकलने वाली डक्ट जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, यहां पर गलत मेंशन कर दिया, वास डिफरेंस है ये। तो टेस्टिस के इस डायग्राम के अंदर जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस की जो लोकेशन रहती है वो एग्जैक्ट इसके बॉटम में रहती है। यहां पर स्पेशल टाइप की मसल जो मैंने पहले बता चुका हूं गुबरेंकुलम रहती है। इस नैरो कैविटी को इंगुइनल कैनाल कहते हैं। उस नैरो कैविटी के अंदर से बहुत सी कंटेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें स्पर्मेटिड कोड कहा जाता है। इस स्पर्मेटिड कोड में क्या निकला है, वास डिफरेंस, जिसे स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। इससे नर्व्स निकल रही है, इससे मसल्स निकल रही है, कुछ लिगामेंट्स निकल रहे हैं जो कनेक्टिविटी बना के रखते हैं टेस्टिस वाले पार्ट का उसके एब्डोमिनल कैविटी के साथ, राइट। यहां पे देखिए टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें अपन, टेस्टिस कुछ ट्रांसवर्स कनेक्शंस, ट्रांसवर्स सेपरेशंस से सेपरेट रहती है। उन ट्रांसवर्स सेपरेशंस को कहते हैं सेप्टास, और ये सेप्टा होता है 250, टोटल 250। इसको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। तो सेप्टास आर ट्रांसफर पार्टीशंस which are present in testes, also known as testicular lobules. Each lobules have 2 to 3, 2 से 3 इस तरह की ट्यूबुल्स होती हैं, हाईली स्पाइरल ट्यूबुल्स। उन हाईली स्पाइरल ट्यूबुल्स को सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पे एक स्टार पॉइंट लगा देते हैं। दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। यदि मैं कहूं कि टेस्टिस में कुछ हो रहा है तो वो बेसिकली इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की वजह से हो रहा है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन मीन पपज है टेस्टिस का, और टेस्टिस का जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली बिल्डअप होता है वो इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल से होता है, राइट। अब देखिए अपन हर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का नंबर है 2 से 3, कितने में, एक सेप्टा में। टोटल कितने सेप्टा है, 250। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आकर के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, इस सेप्टा से निकलने वाले टेस्टिकुलर, इस सेप्टा से निकलने वाले सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, इससे ट्यूबुल्स, इससे ट्यूबुल्स, इससे ट्यूबुल्स, इससे ट्यूबुल्स, जितनी भी सेप्टा से निकलने वाली सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है वो बीच में आकर के टेस्टिस के सेंटर पार्ट में आकर के लिंक करती है। इस लिंक वाले पार्ट को हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस बीच में बाहर वाले हाईली कॉइल्ड पोर्शन से कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। जो लिंक वाला पोर्शन है वो वास एफरेंशिया है, राइट। तो वास एफरेंशिया लिंक द रेटी टेस्टी टू द एपिडाइडमस। व्हाट इज द एपिडाइडमस? एपिडाइडमस टेस्टिस के डोर्सल सुपीरियर पोर्शन से पोस्टीरियर पोर्शन से पूरी हाईली कॉइल्ड है। सो जो वास एफरेंशिया है वो बाहर निकलने के बाद में हाईली कॉइल्ड हो जाती है और टेस्टिस के पोस्टीरियर पूरे पोर्शन को कवर करती है। इस पूरे हाईली कॉइल्ड ट्यूबुल पोर्शन दैट कॉल एपिडिडाइमस। ये एपिडिडाइमस स्पर्म्स को जो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं उनको नॉरिशमेंट, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के साथ सुटेबल टेम्परेचर भी प्रोवाइड कर रही है, राइट। उसके बाद ये जो एपिडाइडमस है उससे ये पोस्टीरियर लोअर पोर्शन से टेस्टिस के निकलने के बाद स्ट्रेट हो जाती है, और स्ट्रेट होने के बाद ये इंगुइनल कैनाल के थ्रू स्पर्मेटिड कोड के थ्रू बाहर निकलते हुए पूरी बॉडी में, एब्डोमिनल बॉडी में कैविटी में एंटर करती है। दैट कनेक्टिविटी कॉल वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को स्पर्म डक्ट के नाम से भी कहा जाता है। आगे बढ़े उससे पहले हम बात करें यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। क्या कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। Yes, here the diagram of seminiferous tubules
we can see the structures, the seminiferous tubules by checking the transverse section of these kind of tubules, right? As we know, the seminiferous tubules are the structural functional unit of testes. ये टेस्टिस का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है. इसके अंदर यदि मैं एक पोर्शन यानी कि एक सेप्टा से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूं तो सेप्टा के अंदर मेरे को डिफरेंट 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स मिलती हैं. तो यहां पर मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को एनलार्ज कर दिया है. ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है. हर बिटवीन 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ए स्पेस दैट कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस. दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो कंटिन्यू कोई भी दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कंटेन 2 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ 2 सेल्स. 2 टाइप की सेल्स उसके अंदर होती है. स्पर्मेटोगोनिया आर द इमेच्योर जर्मिनल सेल्स. इमेच्योर जर्मिनल सेल्स अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म. यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल्स होती हैं. ये जर्म सेल्स एक तरह से जिस लेयर में होती है उसे जर्मिनल लेयर कहते हैं. और जर्मिनल लेयर के अंदर जो इमेच्योर सेल्स मैच्योर होकर के आगे स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. ये प्लॉइडी के अकॉर्डिंग ये डिप्लॉयड होती है. यानी कि ये स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर सेल्स मियोसिस के अंडर गोज जाने के बाद में ये स्पर्म बनाती है, राइट. सेकंड, जो बीच में कॉनिकल शेप सेल्स हैं वो कॉनिकल शेप सेल्स बंच ऑफ द सेल्स कॉल्ड सर्टोली सेल्स. दे आर रेस्पॉन्सिबल, द सर्टोली सेल्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर्स. स्पर्मेटोजोआ कहते हैं जिसको. तो जितने भी स्पर्म्स होते हैं जो स्पर्मेटोगोनिया से ओरिजिन होते हैं बेसिकली सर्टोली सेल्स उनको नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है. सो सर्टोली सेल्स आल्सो नोन एज, इनको सर्टोली सेल्स को क्या एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, नर्स सेल्स. ये भी डिप्लॉयड होती हैं, राइट. In between the space that called interstitial space, that interstitial cells के अंदर क्या क्या होती हैं? ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां स्पेशल टाइप की एंडोक्राइन सेल्स होती हैं. वो एंडोक्राइन सेल्स कहलाती है लैडिंग सेल्स. ये लैडिंग सेल्स स्पेसिफिक टाइप के मेल सेक्स हार्मोन्स का रिलीज करती है, यहां से सिक्रेशन करती है. इसलिए टेस्टिस को एंडोक्राइन ग्लैंड माना जाता है. सो लैडिंग सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वही है जो टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, अपोजिट अट्रैक्शन के लिए, इन सभी बॉडी के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. अब अपन लेते हैं नेक्स्ट एसेसरी डक्ट्स. टेस्टिस कंप्लीट हो गया, एसेसरी डक्ट्स लेते हैं. Yes, the second part of the male reproductive system is accessory ducts, right? These are not the basic ducts. These ducts are responsible to help the reproductive system. ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्प करने का काम करेगी. क्या हेल्प करेगी? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म्स को कैरी करने का काम करेगी, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगी, राइट. नरिशमेंट और डेवलपमेंट देने का भी काम कर रही है. मेनली क्या फंक्शन हुआ इसका? ट्रांसपोर्टेशन करना, राइट. सो रेटी टेस्टी एक टेस्टिस का सेंटर वाला पोर्शन है. ये सेंटर वाले पोर्शन के अंदर क्या काम किया जा रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स और वास एफ्रेंशिया, इन दोनों में कनेक्शन करने का काम रेटी टेस्टिस है. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हर सेप्टा में मौजूद है. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स 2 से 3 होती हैं, तीनों मिलकर के एक जॉइंट डक्ट बनाती हैं. सभी अलग अलग सेप्टा से निकलने वाली सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एक सेंटर पार्ट में आकर के जॉइंट होती हैं. इस जॉइंट कनेक्शन को रेटी टेस्टी कहा जाता है. वास एफ्रेंशिया क्या है? जब सारी की सारी रेटी टेस्टी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के कनेक्शंस आके मिल जाते हैं तो इस रेटी टेस्टिस का कनेक्शन एपिडेडिमस से करना होता है, हाईली कॉइल्ड डक्ट से, जो उसके टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन को पूरा कवर करती है. तो वास एफ्रेंशिया क्या काम कर रही है? वास एफ्रेंशिया रेटी टेस्टी को
रेटिटेस्टी को रेटिटेस्टी वास एफरेंशिया रेटिटेस्टी और एपिडाइडमिस के बीच में कनेक्शन करने का काम कर रहे हैं। ये पैरेलल कुछ डक्ट्स हैं, जैसे टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर अलग अलग सेप्टा से अलग अलग तरह की सेमिनिकलस ट्यूब्यूल्स निकल रही है, इस पोर्शन में आके मिल गई तो उसे रेटिटेस्टी बोला। रेटिटेस्टी एपिडाइडमिस वाले पोर्शन के अंदर बीच में लिंक कर रहा है, उसको वास एफरेंशिया बोलते हैं, ये वास एफरेंशिया हो गया। एपिडाइडमिस क्या हुआ, वास एफरेंशिया का एक डक्ट हाईली कॉइल्ड होकर के इस टेस्टिस के पोस्टीरियर पोर्शन को पूरी तरह से कवर करता है, यहां से हाईली कॉइल्ड होकर के, कॉन्वोल्यूटेड होकर के, हाईली कॉइल्ड रिकॉइल्ड होकर के पूरी तरह से इस टेस्टिस को पोस्टीरियर पोर्शन से पूरा कवर कर लेता है, और कवर इस पोर्शन को एपिडाइडमिस कहते हैं। इसका क्या पर्पज है, टेस्टिस से जो बनने वाले स्पर्म्स को है वो कैरी किया जा रहा है, ना इतना स्पीड से वो टेस्टिस इतने स्पर्म निकल रहे हैं, वो इस स्पीड से कहीं तेजी से ना निकल जाए, इसलिए उनकी स्पीड को, उनके फर्दर बचे डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये जो हाईली कॉइल्ड डक्ट है जो टेस्टिस को कवर करते हुए, पोस्टीरियर रीजन से कवर करते हुए आगे बढ़ रही है, वो उन ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले स्पर्म्स की स्पीड को स्लो कर देती है, जिससे नॉरिशमेंट के साथ उनका मैच्योरेशन हो सके। यहां पर टेस्टिस से निकलने वाले स्पर्म्स को कैपेसिटेशन दिया जाता है। कैपेसिटेशन एक एबिलिटी है जिससे स्पर्म जैसे ही एग के कांटेक्ट में आए उसको सक्सेस वे में फर्टिलाइज कर सके, राइट। तो एपिडाइडमिस हुआ। एपिडाइडमिस के बाद बात करें अपन वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया क्या है, इस डायग्राम में देखिए यहां पर इस टेस्टिस से इस वाले पोर्शन को वास एपिडाइडमिस कहते हैं। इस एपिडाइडमिस की हाईली कॉइल्ड जो अब तक कॉइल्ड हो रही थी, अब वो स्ट्रेट होकर के एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करने वाले इस पोर्शन को वास डेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अपन वास एपिडाइडमिस हो गया, वास डेफरेंस हो गया, तो वास डेफरेंस क्या काम कर रहा है, वास डेफरेंस यूरेथ्रा को किससे जोड़ने का काम कर रहा है, एपिडाइडमिस से जोड़ने का काम कर रहा है। एपिडाइडमिस किससे जोड़ने का काम कर रहा है, वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया को ये वास डेफरेंस से जोड़ने का काम कर रहा है, राइट। तो ये डक्ट्स हैं जो मिच्योर या डेवलपिंग स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करें यहां पर यूरेथ्रा क्या है, देखिए अपन ये एक्सेसरी डक्ट्स होगी, यूरेथ्रा भी उसी का पार्ट है, उसी का ब्रॉड फॉर्म है, सस्पेंशन मान सकते हैं अपन, उसका एक्सटेंड फॉर्म मान सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से आने वाले यूरिनरी पैसेज के साथ एक जॉइंट फॉर्म बनाती है। इस जॉइंट फॉर्म को कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसका जॉइंट फॉर्म हुआ, यूरेथ्रा दो का जॉइंट फॉर्म हुआ, वास डेफरेंस प्लस यूरिनरी पैसेज, यूरिनरी डक्ट, यानी कि वास डेफरेंस और यूरिनरी डक्ट दोनों मिलकर के यूरेथ्रा बना रहे हैं। यूरेथ्रा को एक नाम से और जाना जाता है यूरिनो जेनाइटल पैसेज, that is similar to as urethra। तो दो चीज आ गई, यूरिनरी डक्ट और जेनाइटल का मतलब वास डेफरेंस, दोनों के जॉइंट फॉर्म को यहां पर यूरेथ्रा बोला जाता है। सो यूरेथ्रा इज थिन मस्कुलर डक्ट originated from urinary bladder and pass through the penis which opens as urethral pore। ध्यान से देखिए यहां पर ये वास डेफरेंस यूरिनरी पैसेज के साथ में ब्लॉक जॉइंट हो गई, यूरेथ्रा कहलाएगा। यूरेथ्रा किस में से पास हो रही है, पेनिस में, और ओपन किस पे हो रही है, ग्लैंस पेनिस के यूरेथ्रल पोर से हो रही है। तो ये हो गया यूरेथ्रल पोर। तो यूरेथ्रल पोर के ऊपर ये यहां पर निकल जाती है, ठीक है। हम यहां पर ये भी चीज ध्यान दें कि जो पेनिस है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन नहीं है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन पार्शियली कवर्ड रहता है। ध्यान से देखिए यहां पर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसको पेनिस की बॉडी कहते हैं। ये ग्लांस पेनिस हो गया। ये ग्लांस पेनिस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, पार्शियल स्किन, जिसको फोरस्किन भी कहते हैं। फोरस्किन, इस फोरस्किन का टेक्निकल नेम है प्रीप्यूस। सो प्रीप्यूस इसको पार्शियली ग्लांस पेनिस को प्रोटेक्ट करके रखती है। एक मेल का ग्लांस पेनिस हाईली सेंसिटिव पार्ट है, कॉपुलेटरी ऑर्गन का हाईली सेंसिटिव पार्ट है। इससे कोई सेंसिटिव पार्ट मेल के अंदर नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये वाला पार्ट है। अब लास्ट देखते हैं अपन ग्लैंड्स, जो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट को किस तरह से सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, yes, this is the third part of male reproductive system, accessory glands। accessory glands सारी एक्सोक्राइन्स होती हैं। तो इनका मेनली काम क्या है? सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स प्रोडक्ट एज अ मिक्स विद द स्पर्म टू नॉरिश एंड प्रोटेक्ट। इन ग्लैंड से निकलने वाला जो भी सिक्रेशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो स्पर्म के साथ मिलकर के सीमन्स कहलाता है। यदि मैं कहूं कि इनका प्रोडक्ट प्लस स्पर्म दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने के बाद सीमन हो जाता है। ठीक है, सीमन एक लिक्विड है। ये लिक्विड एक हाइड्रो जैकेट की तरह भी काम कर रहा है स्पर्म को। उसे सुटेबल टेम्परेचर भी दे रहा है, उसको नॉरिशमेंट भी दे रहा है, उसको लुब्रिकेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, उसे एंजाइम भी प्रोवाइड कर रहा है, उसे एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है और सुटेबल मीडियम भी प्रोवाइड कर रहा है। राइट, 3 ग्लैंड्स यहां पर आप देख सकते हो। सेमिनल वेसिकल, दिस इज द ग्लैंड। ये ग्लैंड पेयर्स में होती है, लेफ्ट और राइट साइड। दोनों की दोनों किससे जुड़ती है? वास डेफरेंस से। ध्यान रखना, वास डेफरेंस से जुड़ने वाले इन डक्ट्स का खुद का, इन ग्लैंड का खुद का एक डक्ट होता है, जिसको कहते हैं सेमिनल डक्ट। सेमिनल डक्ट, ठीक है। तो वास डेफरेंस यहां पे आ गया और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले सेमिनल डक्ट्स हो गई। तो वास डेफरेंस और सेमिनल डक्ट आके एक कॉमन पैसेज बनाती है। उस कॉमन डक्ट को हम क्या नाम दे सकते हैं? इस कॉमन डक्ट को हम कह सकते हैं, यहां पर ये जो देखिए, यहां पर सेमिनल वेसिकल है, इससे डक्ट निकल रही है, और वास डिफरेंस है। इन दोनों की जॉइंट इस यूरेथ्रा में खुलने से पहले एक कॉमन डक्ट बनती है, जिसको कहते हैं इस्कुलेटरी डक्ट। जिस तरह से सेमिनल डक्ट यहां पर 2 है, तो सेमिनल डक्ट भी 2 हो गई, सेमिनल वेसिकल भी 2 हो गई, तो एस्कुलेटरी डक्ट भी लेफ्ट और राइट साइड 2 हो गई। तो सेमिनल वेसिकल्स सीमन का 60 to 70 परसेंटेज ऑफ पार्ट बनाती है। इसके अंदर मेनली देखा जाए तो ये प्रोटीन दे रही है। इसके प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन देना, प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, फ्रक्टोज शुगर होता है। फ्रक्टोज शुगर पर यहां पे स्टार लगा लें, क्योंकि ये एनर्जी, स्पर्म की एनर्जी है, स्पर्म का एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट है फ्रक्टोज। प्रोस्टाग्लैंडिन, लाइक हॉर्मोन्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से सेमिनल वेसिकल इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में से एक ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसिकल्स सीमन का 60 to 70% पार्ट बनाती है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट काम फोर्टोज है। राइट, सेकेंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो देखिए यहां पर है। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी पैसेज, जहां पर यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, उसके ऊपर एक पोर्शन बनाती है जिसे चेस्ट नट शेप कहते हैं। ये चेस्ट नट क्या है? सिंघाड़ा, आपने नाम सुना होगा, सिंघाड़ा। जैसे मैं कहूं कि आपकी ये यूरेथ्रा है, तो इस यूरेथ्रा को 3 तरफ से 75% पार्ट, यानी तीनों तरफ से, आगे से नहीं, फ्रंट से नहीं, तीनों तरफ से ये प्रोस्टेट ग्लैंड कवर करने का काम करती है। इसकी सिंघाड़े जैसी शेप होती है, चेस्ट नट शेप। तो चेस्ट नट होने की वजह से बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर एक सिंगल है, यानी कि पेयर नहीं है, सिंगल है।
प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो बी डक्ट है वो प्रोस्टेट डक्ट कहलाता है, और वो डक्ट भी किस में आके ओपन हो जाता है, यूरेथ्रा के अंदर हो जाता है। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेट हो रहा है, इससे स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड स्लाइव होता है, एल्कलाइन फ्लूइड मिल्क जैसा, ठीक है। और ये सर्वाइवल ऑफ स्पर्म एंड द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, ये क्या प्रोवाइड करेगा, स्पर्म के अंदर सर्वाइवलिटी ऑफ स्पर्म। ये जो लिक्विड यहां से डिस्चार्ज हो रहा है वो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेगा, सर्वाइवलिटी। सेकंड नंबर, ये जो होता है वो बेसिकली मोबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मोटालिटी ऑफ द स्पर्म। तो सर्वाइवलिटी बढ़ाने का काम कर रहा है यहां पर, और मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और थर्ड एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आ गया बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। काउपर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, दैट्स आल्सो नोन एज काउपर्स ग्लैंड। इस काउपर्स ग्लैंड्स का मेनली फंक्शन हो गया, इससे सिक्रेशन जो भी निकलता है उसका मेन फंक्शन है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन, चिकनाहट प्रदान करना। और ये पेनिस के रीजन में जब स्पर्म निकल रहे हैं पेनिस के पैसेज से होते हुए, जो वहां पर जो रेजिडुअल एसिडिक मीडियम होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम भी बाल्बो यूरेथ्रल डिस्चार्ज के थ्रू होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक मीडियम विच इज प्रेजेंट इन पेनिस। तो पेनिस में मौजूद एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स बताए मैंने आपको। फर्स्ट बताया खुद टेस्टी जो इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। सेकेंडरी मैंने बताया इसका एसेसरी डक्ट्स जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन करने में स्पर्म्स को। और थर्ड बताया जो डिस्चार्ज और प्रोडक्ट है वो जो सीमन बनाने का काम कर रही है उसे एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। ऑल ओवर यदि हम कहें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो हमने इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 3rd नंबर चैप्टर का आज इनिशियलेशन करा है। आज पार्ट फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुआ है। सो लेट्स रिवाइज योर चैप्टर्स प्रॉपरली। तो कीप योर रिवीजन, कीप योर स्टडी ऑन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।